So, hello class. Today we are going to start with the unit 2, that is various forms of technical communication. In this unit we will be seeing what are the various technical documents, like what is report, like what is thesis, how to prepare synopsis, what are the various features, what are the nuances of writing these documents. Along with we will be seeing the 7 C's of communication and how to prepare your other technical documents like resume writing and all that. So, the first technical document that we are going to discuss is report, and the word report is derived from the Latin word a reporter, that means to bring back. You might have gone through your summer training, you might have gone through your projects and all that, and you prepare a technical document where you give your factual data and all that, your research findings. So that small document that you prepared based on the factual data, on the evidence, is called report. So a report is a piece of factual writing based on evidence containing organized information on a particular topic. This topic could be on the basis of the various fields of studies, like a marketing guy can prepare a report on the sales percentage of a particular beverage in Gorakhpur. You can prepare a report on your summer trainings. You can prepare a report on the HR practices, what are the HR incentives and all that in a particular company. So it can be from any specified field of area. It is a major form of technical or business communication. By the communication, so as discussed that this is a major form of technical and business communication. Communication का क्या मतलब होता है? Exchange of information. So if a report prepared by one department is sent to another department, so that information can be exchanged from one department to another department, from one person to another person. Suppose my boss asked me what was the yesterday's a report on the basis of the classes that has been taken. So I can prepare a report and send to my boss. Information can also be exchanged between two organizations on the basis of the report. So this report is a major form of a technical or business communication, and on the basis of these reports we can make decisions also. For example, मार्केटिंग वाला एग्जाम्पल देखा कि गोरखपुर में कोई बीवरेज है, सपोज कोका कोला है, तो उसका क्या परफॉर्मेंस है. तो अगर ये रिपोर्ट के बेसिस पे हमको ये पता चलता है कि बीवरेज का सेल्स जो है डाउन हो जा रहा है, तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सकता है कि किस वजह से सेल्स डाउन जा रहा है, तो उस कारण को दूर करने का हम लोग उपाय कर सकते हैं. या सेल्स बहुत अच्छा जा रहा है तो उसके साथ और क्या चीज़ें कर सकते हैं कि फर्दर ये चीज़ें कंटिन्यूड रहें. So we can see that a report is also a management tool for decision making. It is a major form of the technical and business communication also. Now what are the importance? A report is a scientific product of a professional, like the report prepared by an engineer, like report prepared by a student on the basis of his findings or her findings. A report also helps in decision making and problem solving in an organization. जैसा कि मैंने देखा, कोई भी इशू है तो उस इशू पे एक रिपोर्ट बना करके अगर हमको मिलेगा तो उस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करेंगे, उसके रूट कॉज पे जाएंगे और क्या वेरियस अल्टरनेटिव मेजर्स हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को दूर करने का. तो ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट ए सर्टेन प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सॉल्व्ड एंड सर्टेन डिसीजंस कैन ऑल्सो बी टेकन. फॉर एग्जांपल, इफ ए रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कैंडिडेट, ये कैंडिडेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके प्रमोशन के बारे में डिसीजन ले सकते हैं. कोई कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो वो क्यों परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके कारण को फाइंड आउट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे ताकि उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए. ये डिसीजन लिया कि उसको ट्रेनिंग देना है या नहीं देना है. प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के बाद भी नहीं इंप्रूव हो रहा है, तो फर्दर कुछ हार्श डिसीजन लिए जा सकते हैं कि उसको टर्मिनेट किया जाए एंड ऑल दैट. ठीक है. So a report enables decision making and problem solving. A report helps the authorities in planning new ventures and evaluating resources. For example, a company wants to open a factory in Gorakhpur. तो वो प्रिलिमिनरी रिसर्च कराएंगे पहले कि गोरखपुर में इस प्रोडक्ट को लेकर के एग्जिस्टिंग क्या मार्केट सिनेरियो है, और यदि फैक्ट्री डालना जाए तो अवेलेबल
लैंड कहाँ पे मिलेगा, उसको एक्वायर करने के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कनेक्टिविटी क्या है, इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन कितना उपलब्ध है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे। तो रिपोर्ट के बेसिस पे भी कोई भी कंपनी अपने नए नए वेंचर्स को स्टार्ट करने का प्लानिंग कर सकती है। Reports are also an important means of spreading information. On the basis of the information हम अपने अचीवमेंट्स को कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर पब्लिसाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा एनुअल रिपोर्ट कुछ अखबारों में पब्लिश होती है, वो इसलिए पब्लिश होते हैं कि आम जनता को भी लगे कि इस कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो रिपोर्ट कैन ऑल्सो स्प्रेड इंफॉर्मेशन। Reports serve a measure of growth, progress and success of an organization. On the basis of the report, we can find out, we can see, we can observe कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या वो स्टैगनेंट है, प्रोग्रेस हो रहा है तो कितना हो रहा है, सक्सेसफुल है तो कैसे सक्सेसफुल है। तो रिपोर्ट सर्व्स एज ए मेजर, पैमाना है। ठीक है, पिछले साल का हमारा ये फिगर था, पिछले साल की तुलना में इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इतना इंक्रीज़ किया, इतना ग्रोथ किया। कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट सर्व एज अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोजिटरी मतलब स्टोरेज का काम करेगा। एक बार जो रिपोर्ट बन गया वो टैंजिबल प्रोडक्ट है, जैसे पॉइंट नंबर 1 में हमने बोला था टैंजिबल प्रोडक्ट है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में उसके बेसिस पे फर्दर रिपोर्ट या फर्दर डिसीजंस लिए जा सकें। तो ईयर 2019 का जो रिपोर्ट है वो 2020 में हम उसको दोबारा रिफर कर सकते हैं। पिछले 5 साल में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैसे पता चलेगा, कहाँ से डेटा मिलेगा? तो ये जो रिपोर्ट हमने बनाया होगा, स्टोर करके रखा होगा, उसी बेसिस पे तो पड़ेगा। तो रिपोर्ट इंफॉर्मेशन के स्टोरेज का भी काम करता है और रिपोर्ट जो है वो हमारे थिंकिंग में जो गैप है उसको फिल करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बात किया कि नया फैक्ट्री शुरू करना है, तो नया फैक्ट्री शुरू करना है तो कितना हद तक फिजिबल है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, वो इन हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास तो तुरंत रहेगा नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से डग आउट करना पड़ेगा? रिपोर्ट को रिट्रीव करेंगे, पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हम फिर डिसाइड करेंगे कि एनालिसिस वगैरह करके कि आगे हमको क्या करना है। तो ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस में जो गैप है, जो इन्फॉर्मेशन लैग है, वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो हमको इसी रिपोर्ट से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, व्हाई वी प्रिपेयर रिपोर्ट? बिकॉज इट प्रेजेंट्स द रिकॉर्ड ऑफ एक्म्प्लिश्ड वर्क। हमने जो काम किया, हमें जो टास्क मिला था, वो टास्क कंप्लीट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ, क्या टैंजिबल रिजल्ट से, तो उसका एक रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को स्टोर करने का ऑब्जेक्टिव है। दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। वेरियस रिसर्च वर्क्स चलते रहते हैं, उन रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या है, क्या रिकमेंडेशन है, उसको हम रिकॉर्ड करके टैंजिबल फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं। रिकॉर्ड research findings and technical specification. The fourth purpose, the objective of report is it documents schedules, timetables and milestones. For example, आपके क्लासेस शेड्यूल होते हैं, वो शेड्यूलिंग किस बेसिस पे होगी? वी प्रिपेयर टाइम टेबल कि फर्स्ट लेक्चर ये होगा, सेकेंड लेक्चर ये होगा एंड ऑल दैट। तो लाइकवाइज किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोजेक्ट में एक टाइम शेड्यूल होता है। ठीक है, आपने ऑपरेशन रिसर्च वगैरह पढ़ा होगा कि ये प्रोजेक्ट को हमको इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करना है तो उसके लिए एक पाथ बनेगा जिसको हम लोग PERT या CPM कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो द पर्पस ऑफ रिपोर्ट इज़ दैट इट डॉक्यूमेंट्स, इट मेंटेन्स द शेड्यूल, द टाइम टेबल और क्या माइलस्टोन हमको अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना है, कितने समय में अचीव करना है। तो समय समय पे इस रिपोर्ट को पढ़ करके हम मैनेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हम अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल के हिसाब से काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल्सो टू give you the schedule and timetable and milestones. It also serves what is my current status, current level का performance मेरा कैसा है, at what position I am। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कितने तरह के रिपोर्ट्स बनते हैं। डेली रिपोर्ट भी बनता है, रोज़ रोज़ के काम का रिपोर्ट, आज हमने ये काम किया, फिर उस बेसिस पे क्वार्टरली रिपोर्ट बनता है, मंथली रिपोर्ट बनता है। ठीक है, तो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी बनते हैं। तो ये हमारे करंट स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसमें सुधार के लिए हमारे पास एक टूल का काम करेगा। Report also record and clarify complex information for future reference. रिपोर्ट
कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको सिंप्लीफाई करके हमने स्टोर कर लिया, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ डिसीजन लेना पड़ा तो उसको हम रिफ़र कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करके उसके बेसिस पे डिसीजन या प्लानिंग कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस. लाइक एनुअल रिपोर्ट अखबार में पब्लिश कर दिया, तो इंडिविजुअली जा के देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अखबार में पब्लिश कर दिया, तो वंस एंड फॉर ऑल वो सबके पास एक साथ इन्फॉर्मेशन चला गया. रिपोर्ट कैन बी इन द हार्ड कॉपी ऑल्सो, रिपोर्ट कैन बी इन द सॉफ्ट कॉपी, ईमेल कर दिया हमने लोगों को. ठीक है. एंड अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट इज़ इट रिकमेंड्स एक्शंस. प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस किया, उसके अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शंस हमने डिसाइड किए, तो हम सजेशंस दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दीज आर ऑल द पॉसिबल मेजर्स, जिसको अगर हम लोग अडॉप्ट करें तो दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व. व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ रिपोर्ट. क्या क्या होने चाहिए एक रिपोर्ट में. एक अच्छा रिपोर्ट हो जो एकदम प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, जिसमें फैक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो. दैट मीन्स इट गिव्स यूनिटी एंड कोहेरेंस. रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. हवाई बात नहीं, रिसर्च फाइंडिंग से है, तो इट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड क्वाइट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर डेटा शेयरिंग. द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन ए रिपोर्ट शुड बी रिलेवेंट फॉर द पर्पस. किस चीज़ के लिए ये रिपोर्ट है उस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए. इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेलिंग अ बीवरेज, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए. इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, तो उसके अचीवमेंट्स वगैरह, उसके सेल्स टारगेट, उसका जो एनुअल रिपोर्ट है परफॉर्मेंस का, उससे रिलेटेड होना चाहिए. तो रिलेवेंट होना चाहिए. जिस चीज़ से रिलेटेड वो रिपोर्ट है उस चीज़ से कनेक्टेड होना चाहिए. एंड ए गुड रिपोर्ट इज़ द वन विच इज़ ऑलवेज रीडर ओरिएंटेड. मीन्स जो उसको पढ़े उसको समझ में आए, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो, उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रीडर के रुचि के अनुसार, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके नीड के अनुसार. ठीक है. Recommendations that are made in the report, they should be impartial and objective. Very important. मैंने हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि रिपोर्ट जो है वो एक डिसीजन मेकिंग का काम करता है. तो ए गुड डिसीजन मेकिंग इज़ द वन विच इज़ इम्पार्शियल, जो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के हो. तो वट एवर रिकमेंडेशन वी आर गोइंग टू गिव इन द रिपोर्ट, दैट शुड नॉट बी टू फेवर अ पर्टिकुलर पर्सन, टू फेवर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, और टू फेवर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. इट शुड बी इक्वली इम्पोर्टेंट for all or impartial. It should be prepared in a simple and unambiguous language, ताकि कोई भी उसको पढ़े तो उसको समझने में कोई कॉम्प्लिकेसी ना हो, अर्थ का अनर्थ ना निकले. एंड फॉर दैट पर्पज उसको सिंपल और अनएम्बिगुअस यानी क्लियर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए. ये रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों ये रिपोर्ट बनाया गया है, क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये उसमें टेंजिबल तरीके से क्लियरली मेंशन होना चाहिए. एंड ए रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ. बहुत ज़्यादा अनर्गल इन्फॉर्मेशन, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालने की, उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है. रिपोर्ट इज़ ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है जो अभी हम आपके शेयर करेंगे. रिपोर्ट का टाइटल होता है, रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन होता है, फाइंडिंग्स होगा, रिकमेंडेशन होगा. तो रिपोर्ट उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है तो सबको उस चीज़ को फॉलो करने में ईजी होता है. A single report should deal with one main topic. One report should be for one particular area of study, area of subject area. Moving on, there are various categories of report. How many types of reports are there? The first one is informative report. In this type of report, the document is prepared to share information. इस तरह के रिपोर्ट में डिटेल में फैक्ट्स प्रेजेंट होगा, डिटेल में डेटा गिया के होगा. और इस तरह के रिपोर्ट का जो पर्पस होता है वो रिकमेंडेशन देना नहीं, कंक्लूजन देना नहीं, बस इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है. तो जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स होंगे, डेटा होंगे, वो हम उसको डिटेल में प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स. सेकेंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट. एनालिटिकल का मतलब होता है विवेचना करना, यानी जो इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स हमारे पास मिले उनका प्रॉस एंड कॉन्स, उनको एनालाइज करेंगे, उनका विवेचना करेंगे, उसके इश्यूज़ को, उसके कॉज को, उसके बेनिफिट्स को समझेंगे. एंड ऑन दैट एनालिसिस फिर हम इस तरह की रिपोर्ट में क्या देते हैं, सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे. यानी एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर ऑल्सो गिविंग यू कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस.
Now, on the basis of the frequency, how often a report is prepared, कब कब वो रिपोर्ट बनता है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उस पीरियड के हिसाब से पीरियोडिकल या स्पेशल रिपोर्ट्स बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई रिपोर्ट डेली बन रहा है, डे टू डे ऑपरेशन से संबंधित हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डेली रिपोर्ट। उस हफ्ते में क्या क्या काम हुआ, उस हफ्ते में क्या प्रगति रहा, क्या इश्यूज़ आए, उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ वीकली रिपोर्ट। हर 15 दिन पे अगर बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्टनाइटली रिपोर्ट। एवरी मंथ अगर रिपोर्ट बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मंथली रिपोर्ट। एवरी 3 मंथ्स में बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टरली रिपोर्ट। एवरी 6 मंथ्स के लिए बन रहा है, तो सेमी एनुअल रिपोर्ट। और जो सालाना रिपोर्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड your annual reports. So periodic reports are presented at regular and prescribed intervals. So these are called periodic reports. और इसके अलावा कभी कोई विशेष परिस्थिति आ गई, कोई कैलामिटी आ गया, कोई अचानक से नया प्रोजेक्ट आ गया, तो उससे संबंधित उस स्पेशल ओकेजन, उस स्पेशल इवेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, देन दैट विल बी योर स्पेशल रिपोर्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, उस आधार पे रिपोर्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक ओरल रिपोर्ट एंड रिटन रिपोर्ट्स। ओरल रिपोर्ट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल और बहुत इनफॉर्मल होता है। ओरली हमने अपने बॉस को फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दे दिया या कोलीग के साथ शेयर कर लिया। इट में कम्युनिकेट एंड इम्प्रेशन और एन ऑब्जर्वेशन के आधार पे हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो रिटन रिपोर्ट होते हैं वो बहुत फॉर्मल होते हैं, वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है, उसकी प्रॉपर एडिटिंग और रिव्यू करके उसको फिर हम प्रिपेयर करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, इट कैन बी ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट, कितना लंबा कितना छोटा है, उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, लेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिपोर्ट कैन बी लॉन्ग एंड शॉर्ट। जैसे जो थीसिस टाइप का रिपोर्ट होगा, दैट इज़ वेरी लेंथी। जो सिनॉप्सिस टाइप का रिपोर्ट होगा, दैट विल बी ऑफ शॉर्ट लेंथ। सो दीज रिपोर्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। शॉर्ट रिपोर्ट्स आर वेरी प्रिसाइज, कंसाइज और बहुत ज़्यादा इसमें इलेबोरेट नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट रिपोर्ट्स, जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होंगे उन पर हर चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कशन किया होगा, इलेबोरेटिव होगा, मेथोडोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया होगा, सजेशंस को डिटेल में डिस्कस किया होगा, इन्फॉर्मेशन अबंडेंट होगा, ठीक है। सो लॉन्ग रिपोर्ट्स आर यूजुअली मेड आफ्टर इंटेंस रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन, जो जैसा कि मैंने बोला, जो थीसिस टाइप का होगा। प्रेजेंट करने के तरीके के आधार पे इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ए फॉर्मल रिपोर्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉर्मल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। तो जितना भी ऑफिशियल रिपोर्ट होगा, दैट आर बेसिकली फॉर्मल रिपोर्ट्स। और कैजुअल डिस्कशन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, तो वो कहलाएगा आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। इट इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन और यूजुअली ये जो होता है कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं होगा और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओरल फॉर्मेट में होता है या कभी कभी मेमो के फॉर्मेट में दे सकते हैं। ऑन द बेसिस कि कितने लोगों को हम शेयर कर रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट। If a report is made for one person, that is individual report. If the report is prepared for a large audience, for more than 2 people, for a department, then it could be a group report. Now, if you are preparing report, तो there is a set parameter, उसका एक पैरामीटर है, उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि ये चीज़ उस रिपोर्ट में होना चाहिए, इसी तरीके से बनना होना चाहिए। सो दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। तो पहला चीज़ जो रिपोर्ट में होना चाहिए वो टाइटल सेक्शन। ए रिपोर्ट ऑन द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ कोका कोला इन गोरखपुर रीजन, तो ये हमने टाइटल दे दिया, टाइटल सेक्शन। दिस इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ऑथर, द सब्जेक्ट एरिया, द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑन दैट। देन कम्स समरी। देयर नीड्स टू बी अ समरी ऑफ द मेजर पॉइंट्स। समरी में क्या होता है, उस रिपोर्ट का जो मेन सारांश होता है, मेन चीज़ें होती हैं, उसको हम पहले ही प्रेजेंट कर देते हैं ताकि जो रिपोर्ट को पढ़ने वाला रीडर उसको लग जाए कि व्हाट दिस रिपोर्ट इज़ ऑल अबाउट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, ठीक है। सो द समरी शुड बी शॉर्ट एज इट इज़ a general overview of the report. After summary,
इंट्रोडक्शन जिसमें हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उस इशू को डिस्क्राइब करेंगे. सो द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट नीड्स टू हैव एन इंट्रोडक्शन. यू विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम and show the reader why this report is being made for you. What is the importance of this report? What we are going to find out in this report? You need to give a definition of terms. हम उस रिपोर्ट में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, तो उन एब्रीविएशन को इस इंट्रोडक्शन में हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है. Then you need to give the definition of the terms that we are going to use in the title section and explain how the details of the reports are arranged. And after introducing the topic, after introducing the problem, and after introducing the symbols or the abbreviation or the terms, then we move on to the body section. This is the main section of the report, जिसमें हम सब टाइटल्स होगा, इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होगा, एनालिसिस होगा इसमें, और इसके बेसिस पे फिर हम कंक्लूजन या रिकमेंडेशन देते हैं. सो आफ्टर हैविंग द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, there is conclusion. Whatever analysis we have done in the report, उसका क्या निष्कर्ष निकला. In this section, this is where everything comes together, जहाँ पे हम उसको conclude करते हैं, एक आखिरी निष्कर्ष देते हैं. Keep this section free of jargon. अच्छा, conclusion देते समय हमको बहुत ज़्यादा technical, complicated words का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यही वो सेक्शन होगा जिस पे बहुत सारे लोगों का निगाह होगा कि जो फाइंडिंग्स मिली उसका क्या निष्कर्ष मिला, उसी के बेसिस पे हम फर्दर डिसीजन ले सकते होंगे. तो कंक्लूजन के बाद फर्दर रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन व्हाट नीड्स टू बी डन फर्दर. सो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन. इसमें जो है प्लेन इंग्लिश का इस्तेमाल करके हमारे जो फ्यूचर सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं कंक्लूजन के बेसिस पे वो हम फॉरवर्ड में रखते हैं. और जो आखिरी सेक्शन है वो अपेंडिसेस, यानी इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, वो इसको हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं. सो दिस इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन दैट द एक्सपर्ट इन द फील्ड विल रीड. इट हैज़ ऑल द टेक्निकल डिटेल दैट सपोर्ट्स योर कंक्लूजन. तो फॉर्मेट जो हमने देखा एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में, देयर हैज़ टू बी अ टाइटल सेक्शन, देन उसका एक ब्रीफ समरी हमने प्रेजेंट किया, फिर उस प्रॉब्लम को, उस इशू को हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया, फिर हमारा मेन एनालिसिस डेटा प्रेजेंटेशन होगा, उसके बेसिस पे देन वी फाइंड आउट द कंक्लूजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन वी प्रेजेंट द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव यूज्ड, वो अपेंडिसेस सेक्शन में हम लोग प्रेजेंट करते हैं. नाउ हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, व्हाट केयर नीड्स टू बी टेकन अप, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला चीज़, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो वी शुड एनालाइज द प्रॉब्लम, व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाई सच प्रॉब्लम अकर्ड. आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम हमको ये पता चलेगा कि इस रिपोर्ट का दायरा क्या है, क्या क्या चीज़ों को ये कवर करेगा. देन वी वाइल राइटिंग द रिपोर्ट हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसके लिए ये रिपोर्ट बना रहे हैं, कौन हमारे टारगेट रीडर हैं, टारगेट ऑडियंस हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके नीड को ध्यान में रख करके रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा. And then we'll collect information based on the analysis of the problem. The more information we collect, the more we'll be able to do the analysis. Information primary source से हो सकता है, secondary source से हो सकता है. And after gathering the information, we analyze the information. And then we prepare the report on the basis of the prescribed format जो हमने पिछले section में देखा. Title section, summary, introduction, body, conclusion, recommendations and appendices. Another type of technical document is called thesis या project writing. Thesis आपने देखा होगा, जो लोग भी PhD करते हैं वो अपने 3 साल में जो उन्होंने रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सुनिश्चित तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और ये काफ़ी डिटेल्ड में रिपोर्ट होता है एक तरह से. ठीक है, मोर देन 150 पेजेस के अराउंड होगा ये. ठीक है. सो थीसिस इज़ एन एनालिटिकल रिपोर्ट दैट इज़ प्रेजेंटेड इन द परसुएंस ऑफ एन एकेडमिक डिग्री. हम एकेडमिक डिग्री को हासिल करने के लिए जो हमने रिसर्च किया है उसके रिसर्च के उपरांत हम उसका एक एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं. पर्पस क्या होता है इस रिपोर्ट का, ताकि हमको इसके उपरांत एक उपाधि मिल जाए, एक डिग्री मिल जाए. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड रिसर्च फाइंडिंग्स. दैट इज़ द पर्पस ऑफ द थीसिस. अब थीसिस में क्या स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा मोटा सा एक डॉक्यूमेंट होगा. जो पहला पेज होता है, जो पहला सेक्शन होगा वो टाइटल का होगा.
सो व्हाट आर द वेरियस सेगमेंट्स इन द थीसिस और प्रोजेक्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देयर हैज़ टू बी अ टाइटल। टाइटल सेक्शन में क्या होगा? सपोज़ कोई मैनेजमेंट का बंदा है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, तो ही विल बी यूजिंग इन द टाइटल पे रिसर्च बेस्ड ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स को रिलेशन विद द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। टाइटल पेज में उसका टॉपिक आ गया, मेड बाय जो रिसर्चर होगा उसका नाम आ जाएगा, देन किसके अंडर में वो ये रिसर्च कर रहा है और किस डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहा है, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन आपका टाइटल पेज में आएगा। मींस टॉपिक का नाम, रिसर्चर का नाम, उसके गाइड का नाम, वो डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत में वो काम कर रहा है। सेकेंड सेक्शन इज़ दैट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि उस रिसर्च का एक पैराग्राफ में समरी फॉर्मेट में होता है। सपोज इमोशनल इंटेलिजेंस और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात हम कर रहे थे, तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा? रिसर्च ऑन द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रिलेशन विथ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में हमने बता दिया। व्हाट मेथड्स आई एम गोइंग टू यूज़ ये बता देंगे, और क्या रिजल्ट फाइंड आउट करने की क्या हाइपोथेसिस है मेरा, किस चीज़ को प्रूव करने की हम लोग प्रयास करेंगे उस रिसर्च में, वो हम बता देंगे समरी फॉर्मेट में। देन अनदर सेक्शन इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है कि उस रिपोर्ट में, उस थीसिस में जितने भी हमारे टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगा कि ये टेबल हमने प्रयोग किया है, तो वो टेबल किस पेज नंबर पे कहाँ पे है, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम वो फिगर आउट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होंगे, किस पेज पे कौन सा टॉपिक है। ठीक है, देन लिस्ट ऑफ फिगर्स आएगा, जो भी डायग्राम का इस्तेमाल किए होंगे कि उन डायग्राम की एक लिस्टिंग हम बना के दे देंगे कि किस पेज पे कौन सा डायग्राम है, उसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, देन लिस्ट ऑफ टेबल्स, जो टेबलर फॉर्मेट में जो डेटा होगा उसकी टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्मेट में होगा कि किस पेज पे कौन सा टेबल है, उसका क्या नाम है, उसका क्या पर्पज़ है। देन वी हैव इंट्रोडक्शन। उस टॉपिक के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ में लोगों को बताना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, उसके कितने प्रकार होंगे, हाउ द इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ रिलेटेड विथ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक, फिर एक सेक्शन आएगा लिटरेचर रिव्यू। हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, उस पर पहले कितने काम हो चुके हैं, कितना और रिसर्च इस पर हो चुका, तो उन रिसर्च को हम पहले पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम नया क्या करने जा रहे हैं, वो चीज़ हमारा रिसर्च का टॉपिक होगा। तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड पहले इसमें क्या क्या काम हो चुका है, उनकी क्या फाइंडिंग्स रही, उनका हम अपने रिसर्च में कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उन रिसर्च को जो हमने पढ़ा है उसका एक रिव्यू हम यहाँ पे देंगे कि ये चीज़ ये काम पहले हो चुका है। तो लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर डूइंग एनी रिसर्च और फॉर प्रिपेयरिंग अ थीसिस रिपोर्ट। बताना पड़ेगा कि हमारा काम कैसे नया है और कैसे पुराने काम से रिलेटेड है। फिर आता है इसमें मेथड्स की, हम जो अपना रिसर्च फाइंडिंग है उसमें किस मेथड का इस्तेमाल, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग एनालिसिस करने के लिए, उस स्टैटिस्टिकल मेथड का क्या लिमिटेशन हो सकता है, क्या एडवांटेज है, सब बताना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम रिसर्च का एनालिसिस कर रहे हैं उसमें 100% एक्यूरेसी हो, तो हमारा जो लिमिटेशन है वो भी बताना पड़ेगा ताकि रीडर को पता चल जाए कि हाँ ये एरर की संभावना हो सकती है यहाँ पे। तो जो मेथड हम इस्तेमाल करने जा रहे होंगे उस मेथड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देन थीसिस का अगला जो सेक्शन होगा कि उस एनालिसिस के बाद हमको क्या परिणाम मिला, हमने जो हाइपोथेसिस दिया था कि हमको ये चीज़ प्रूव करना था, तो क्या वो रिज़ल्ट हमको मिला या नहीं मिला, मिला तो किस हद तक मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो मोस्टली मिले वाले पे ही हम लोग बात करते हैं। तो इस सेक्शन में एनालिसिस के बाद जो हमारा रिज़ल्ट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिज़ल्ट जो हुआ उसको एज इट इज़ प्रेजेंट कर देंगे, उसका डिस्कशन अगले सेक्शन में आएगा जिसको बोलते हैं डिस्कशन। तो उस अब जो रिज़ल्ट हमको मिला उसके प्रॉस कॉन्स एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे।
उसके लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिज़ल्ट हमको मिला, वो हमने रिज़ल्ट सेक्शन में दे दिया, और उसका अगला सेक्शन जो होगा डिस्कशन सेक्शन, उसमें हमने डिस्कस किया उसको। और उस डिस्कशन के उपरांत व्हाट इज़ माय फाइंडिंग, व्हाट इज़ माय कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, वेदर माय हाइपोथेसिस वाज accomplished or not, and then on the basis of that conclusion what further needs to be done। हमारे रिसर्च का जो कंक्लूजन निकला उसके बेसिस पे हम क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की बातें हम बताने जा रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशन सेक्शन में आएगा। एंड देन इन राइटिंग ए थीसिस वी गिव एक्नॉलेजमेंट, कि हमारे इस एक्नॉलेजमेंट आपने किताब वगैरह में भी पढ़ा होगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, इस रिपोर्ट को बनाने में, इस थीसिस को बनाने में इन लोगों का ये सहयोग रहा है। तो ये हमारा एक ग्रैटिट्यूड है उनके प्रति कि हम उनको वो एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, उनके चीज़ों, उनके जो मदद हमको उन्होंने दी उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एंड देन वी हैव द रेफरेंस सेक्शन। हमने अपने रिसर्च रिपोर्ट को बनाने में किन किन रिपोर्ट्स का, किन किन लिटरेचर्स का रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो दैट इज़ द पर्पस, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस। नाउ जब भी हमको थीसिस लिखना है तो उसका क्या इम्पोर्टेंट है, वाई डू वी राइट थीसिस? इट हेल्प्स टू फॉर्म आर्गूमेंट्स। जो भी हम थीसिस रिसर्च फाइंडिंग्स देते हैं, इससे हमको उसके बारे में विवेचना करने में, तर्क करने में, डिस्कस करने में मदद मिलती है। इट इम्प्रूव द एबिलिटी टू प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज डिस्कशन, एंड इट इंडिकेट्स प्रोफिशिएंसी ऑन अ चोजन सब्जेक्ट। उस विषय वस्तु में मेरी कितनी पारंगतता है, कितना स्किलफुल हूँ। एंड इट एनहांसेस द कैपेबिलिटी टू क्रिएट लॉजिकली कंस्ट्रक्टेड पेपर। जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया वो लॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है, एनालिसिस करने के उपरांत है, हवाई बात नहीं है। स्टैटिस्टिकल टूल्स का मदद हमने लिया ना एनालिसिस करने में, तो वो एक साइंटिफिक प्रूफ है हमारे हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ द थीसिस इट हेल्प्स टू फॉर्म आर्गूमेंट्स, it helps to improve your writing skills, the way you present your finding, the way you present your ideas. So it also improves your writing skills that are always in great demand, not only for making impeccable academic tasks but may be needed to communicate with colleagues and employees via email and pages. Second importance of thesis is it improves logical thinking. लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स करते हैं। कंक्लूजन आपने बताया रिपोर्ट में हमने क्या निकाला, कंक्लूजन कैसे निकला, रैंडमली तो निकला नहीं, हमने जो स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया उसके बेसिस पे हमने एनालाइज किया, लॉजिक का इस्तेमाल किया। लॉजिक क्या है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है किसी निष्कर्ष पे पहुंचने का। तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स के बेसिस पे कंक्लूजन दे रहे हैं। तो इन अ वे दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, दिस रिपोर्ट राइटिंग इज इम्प्रूविंग माई लॉजिकल थिंकिंग ऑल्सो। दैट इज़ द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च राइटिंग। नाउ एक अच्छे थीसिस में या एक अच्छे प्रोजेक्ट राइटिंग में क्या होना चाहिए, जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो रीडर के अनुसार हो, रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हो। तो वो सारी चीज़ें हमारे इस थीसिस रिपोर्ट में भी आएंगी। द टाइटल ऑफ द पेपर शुड बी क्लियर। जो भी थीसिस राइटिंग है उसका जो टाइटल है वो क्लियरली एक्सप्लेन्ड हो सिंपल लैंग्वेज में, ताकि लोगों को समझ में आए। जो एब्स्ट्रैक्ट हम लोग देते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना, वो शॉर्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही वो एक पैराग्राफ 10 से 12 लाइन से ज़्यादा ना हो। तो एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी शॉर्ट एंड फ्री ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो ताकि कंफ्यूज ना हो रीडर। इट्स मेन असाइनमेंट इज़ टू ग्रैब अटेंशन एंड इवोक क्यूरियोसिटी। एब्स्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ करके रीडर को लग जाएगा कि ओके इस रिपोर्ट में क्या हमको मिलने जा रहा है, क्या काम होने जा रहा होगा, क्या प्रूव होने जा रहा होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो हमको ध्यान में रखना होगा, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो मेन आइडिया है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है। और क्यों इस टॉपिक को चूज़ किया गया है वो पर्पस, उसमें उसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जाए। वाई दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फॉर दिस रिपोर्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक। सेकंड, रिपोर्ट राइटिंग बनाते समय या थीसिस लिखते समय टाइमिंग का बड़ा इस्तेमाल इम्पोर्टेंस है। स्टिपुलेटेड टाइम में हमको अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर देना होगा।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं 8-9 साल लगा देते हैं, इट्स ऑफ नो यूज़। जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है 2 से 3 साल का, मैक्स टू मैक्स 5 साल का, ठीक है। तो द टाइम इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, प्लान द एक्शन इन एडवांस एंड लीव फ्यू डेज फॉर प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। तो आप अपना एक टाइम सेट कर लीजिए कि इतने दिन में हमको कर लेना है अपना रिसर्च वर्क, और इतने दिन में हमको रिसर्च राइटिंग को लिख देना है, और 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखिए ताकि प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग कर पाए। टेक गुड केयर अबाउट द रेफरेंसेस, आपने जहाँ जहाँ से लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है उनको वहाँ पे उल्लेख करिए। प्लेजियारी नहीं करना है, यानी दूसरे के काम को अपना नहीं बनाना है। अगर हम किसी दूसरे के काम को मेंशन कर रहे हैं तो उसको ड्यू क्रेडिट देंगे हम लोग रेफरेंस में, बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। सो टेक गुड केयर अबाउट द रेफरेंसेस, लुक थ्रू द लेटेस्ट साइंटिफिक आर्टिकल एंड रीड द लेटेस्ट मैगजीन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बी अवेयर ऑफ द प्लेजियरिज्म, यानी वही चीज़ कि हमको दूसरे के काम को हूबहू इस्तेमाल नहीं करना है कि ये मैं अपना बना के पेश कर दूँ। रिसर्चर ए का अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हमको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमने इस रिसर्च वर्क से लिया है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू साइट द इन्फॉर्मेशन, जो लास्ट का रेफरेंसेस सेक्शन होता है वहाँ पे उनको उल्लेख करेंगे कि हमारे रिसर्च में मैंने इनका इस्तेमाल किया है, इस लिटरेचर का इस्तेमाल किया है। एंड पे अटेंशन टू द राइटिंग स्टाइल, जो राइटिंग स्टाइल हो वो सिंपल लैंग्वेज में हो, ग्रामर में मिस्टेक ना हो, अदरवाइज़ जो हम कहना चाह रहे होंगे उसका मीनिंग जो है वो दूसरा निकल सकता है, ठीक है। एंड बिफोर सबमिटिंग आप उसको एक बार से एडिट कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे कोई टाइपिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी सॉ व्हाट इज रिपोर्ट, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स, हाउ a report is to be made, what is the format of the report, what are the features of the report. Then we saw what is thesis. Thesis is the technical document that is based on research, a lengthy analytical report. और एक थीसिस में कितने सेक्शंस होते हैं, what is the importance of thesis and what are the features of the thesis writing. So that is all for the lecture number 1 of the unit 2. In unit 2 second lecture we will be talking about technical proposal and all that. So thank you.